Hello everyone, welcome to yet another video of the series Business Management. Hope you all are doing well and studying well. So in our last video, I shared a glimpse of the topics, the concept of organizing and the nature of organizing. In this video, I will talk about what is an organization, what is the purpose of organization, what are the important elements of an organization, why organization is important, what steps are there as process of an organization, and then finally what is departmentation. Okay, so let's begin. First and foremost, what is an organization? क्या होता है organization? Organization या कई बार हम इसको अलग अलग टर्म्स से बुलाते हैं, जैसे कंपनी, एंटरप्राइज, फर्म, ये क्या होते हैं? In our day-to-day life, we hear a lot of companies name Airtel, Microsoft, HCL, SBI, Idea, Reliance, Tata, Pantaloons. ये सब क्या है? These are not just names, these are organizations, these are companies which are working to achieve their goals and objectives, which are working in the market, which are existing around us, working day in and day out to reach their target, to reach their organization's objective. तो ये बेसिकली क्या है? यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हम लोगों को देखते हैं, उनको पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूट करते हुए देखते हैं, उनको डेडलाइन अचीव करते हुए देखते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हुए देखते हैं, उनको स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए, स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हुए देखते हैं. मतलब देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स व्हिच व्हेन comes together forms an organization. So we can say people or the labor or the staff working plus a common goal or objective, a structure of communication, environment in which they exist, and सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस या कोड ऑफ कंडक्ट. जब इन सबको हम मिला लेते हैं, इन सबको एक साथ लेके आते हैं, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, एक कंपनी बनती है, एक एंटरप्राइज बनता है. ओके, सो वी कैन से in a literal words, an organization is a social unit of people that is structured and managed to meet a need or to pursue collective goals. It has a management structure that determines the relationship between different activities and members. And it is an open system which is affected or which affects the environment in which it exists. Clear? All right. Now we can think, क्यों है organization? Why does it exist? Why we see so many companies existing around us? So we can say what is the purpose of an organization? क्या क्यों जरूरी है organization form करना? Companies क्यों exist कर रही हैं? So the purpose of an organization is the fundamental reason why the organization exists. कोई पर्पस होगा तभी हम काम कर रहे हैं, कोई पर्पस होगा तभी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं. सो व्हाट इज देयर व्हाई ऑफ वर्किंग? Purpose is the most central component of your organization's core culture. कोई भी कंपनी एग्जिस्ट क्यों कर रही है, कोई भी कंपनी काम क्यों कर रही है, वो उसका पर्पस होता है. क्या अचीव करना चाहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट क्या अचीव करना चाह रहा है? अमेजॉन क्या अचीव करना चाह रही है? टाटा कंसल्टेंसी क्या अचीव करना चाहता है? क्या है उनका एंड ऑब्जेक्टिव, क्या है उनका गोल? ऑल दीज आर टर्म्ड एज पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टेंस. ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट दे व्हेन दे मस्ट हैव फॉर्म्ड, उनके जो फाउंडर्स थे उन्होंने सोचा होगा कि वी वांट टू बी द बेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी इन द वर्ल्ड. अमेजॉन ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा, दे माइट हैव थॉट दैट आवर पर्पस इज टू बी वन ऑफ द लीडिंग ई कॉमर्स कंपनीज इन द वर्ल्ड. मे बी जब पैंटलून्स या ट्रेंड्स या वेस्ट साइड जब इनने शुरू किया होगा, सो द फाउंडर्स मस्ट हैव हैड द आइडिया ऑफ बीइंग वन ऑफ द फाइनेस्ट रिटेल कंपनीज इन द वर्ल्ड. और जब SBI फॉर्म हुआ होगा, या जब आपका एक्सिस बैंक या ICICI बैंक फॉर्म हुआ होगा, उस समय वहाँ के जो आपके फाउंडर मेंबर्स होते हैं जिनने शुरू किया था, उनका ये पर्पस रहा होगा, या उनने सोचा होगा वी वांट टू बी द बेस्ट इन दी बैंकिंग इंडस्ट्री.
So every organization must have an end objective या purpose of their existence. It should be a clear statement. ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा मिशन या ऐसा विजन होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के, उस कंपनी के हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि वो काम क्यों कर रहे हैं उस कंपनी में, उस कंपनी का मेन पर्पस है, उसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, उसके लिए हम सब इकट्ठा होके एक स्ट्रक्चर में, एक 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 काइंड ऑफ प्रोसीजर में यहाँ पे काम कर रहे हैं. So what are the different elements या different components of an organization? जैसा भी मैंने बताया, there has to be a well defined objective, the end objective, जिसको कंपनी मिशन या विजन का नाम भी देती है कि what is the objective of the company, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या उनका एंड गोल है. There has to be set of well coordinated, organized group of people who come and bring set of skills and abilities with them जो उस काम में यूज होगा. Proper division of work and labor. Not every people, every employee will be working on one particular task. Everybody will be divided into work based on their caliber and capabilities and skill set and technicalities. फाइनेंस के लोगों को एक सेट में रखा जाएगा, एचआर से रिलेटेड जिनके पास स्किल सेट है उनको एक साथ रखा जाएगा, जिनको मार्केटिंग बहुत अच्छी है, जिनकी एडवर्टीजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, पीआर बहुत अच्छा होता है, उनको एक एक कैटेगरीज में रखा जाएगा. सो वी डिवाइड द पीपल बेस्ड ऑन देयर abilities and skill set. Then you have to have a clear code of conduct कि क्या culture आपको follow करना है when you are working in an organization. Every organization has their own organization's culture. एक इंडियन कंपनी की अलग स्टाइल ऑफ वर्किंग हो सकती है, एक अमेरिकन कंपनी की अलग वर्किंग स्टाइल हो सकती है, एक पब्लिक कंपनी की अलग स्टाइल ऑफ वर्किंग हो सकती है, उनके पॉलिसीज अलग हो सकते हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनीज की अपनी खुद की कोड ऑफ कंडक्ट या पॉलिसीज हो सकती हैं. that has to be abided by all the people working in that particular organization. All right. Then you have proper division of authority and responsibility. Now we have studied about hierarchy. Hierarchy क्या होता है? Levels of positions in the company. There are 3 basic levels: top, middle and lower management. तो there has to be people who are sitting at the top management जो हर चीज को अब अपने अंतर्गत देखते हैं कि काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पीपल आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, द रिसोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड प्रॉपरली और नॉट, कोई चेंजेस उनके पॉलिसीज में करने की जरूरत तो नहीं है, कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तो कोई ऐसा चेंज नहीं हो रहा विच माइट इम्पैक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सब देखने के लिए देयर हैज टू बी सेट ऑफ पीपल सिटिंग एट द टॉप पोजिशन monitoring the execution of work on a day-to-day basis. And then there has to be an effective system of communication. हमने पढ़ा है कि communication is a mechanism जिसमें आप अपने within the organization or maybe with the outside environment आप communicate करते हैं, and there has to be a certain channel or certain way of communication when it comes to a formal communication. आपको रिटन कम्युनिकेशन करना है, ओरल करना है, ऑडियो विजुअल करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द मैसेज एंड कंटेंट, बट देन देयर हैज टू बी सर्टेन सेट एंड रूल टू बी फॉलोड व्हेन यू communicate within the organization or with the stakeholders of the organization. तो जब हम इन सब को मिला के ले आते हैं, when all these elements work in sync with each other, in coordination with each other, then we can say that that organization is a sound organization, that is a well coordinated organization and is a progressive organization. Okay, now what is the process of organization? ऑर्गेनाइजेशन में क्या लेआउट होता है, क्या रोड मैप होता है, क्या प्रोसीजर होता है जो हर एक को फॉलो करना पड़ता है ताकि वो अपने टारगेट को, अपने एंड ऑब्जेक्टिव को बहुत ही स्मूथली अचीव कर सके. ओके, पहला होता है देयर हैज टू बी अ टारगेट, फर्म्स टारगेट. बीइंग वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर company in the world or the top software company in the world might be the target of Microsoft or say HCL or HP. तो ये उनका टारगेट था जो वो अचीव करना चाहते हैं, जो उन्होंने सोच के रखा कि ओके बाय द एंड ऑफ से 2025 वी वांट टू रीच दिस पर्टिकुलर पोजीशन इन आवर इंडस्ट्री. नाउ व्हाट आर द एक्शंस रिक्वायर्ड? टारगेट हमने बना लिया, अब उसके लिए क्या क्या स्टेप्स चाहिए, क्या क्या एक्शंस हमें एग्जीक्यूट करना है, वो होगा डिटरमाइनिंग एक्शंस.
उन एक्शंस में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, कौन कौन से लोग होंगे जो उस एक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, क्या क्या उनको माइलस्टोन अचीव करना है, सो दैट दे कैन फाइनली रीच द टारगेट विच दे हैव मेड फॉर द नेक्स्ट 2 years। तो वो हम कोऑर्डिनेशन करेंगे उसका। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि एवरीबडी शुड नो व्हाट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट दे आर अकाउंटेबल। ये सबको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि हम अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाट इज आवर ड्यूटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, एंड देन असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी। ओके, हु विल बी आर रिपोर्टिंग मैनेजर, कौन होगा हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कौन होगा जो एट द एंड हु विल कीप अ वॉच, अ क्लोज control of the entire working। Then you have to have a formal code of conduct, जैसे मैंने बोला, you should know a formal organization structure, there should be a chart explaining everything, there should be a manual, maybe a policy, जिसके अंतर्गत ये सारा काम एग्जीक्यूट होगा, ताकि if there is any discrepancy, there is any problem, there is any chaotic situation, so you can go back and refer to these manuals and policy books। Okay, so when all these are done one by one, then you call it a process of organization। Okay, now that is being explained again here. Determining targets, determining actions, you can have a look. Coordination of actions, then you have distribution of duties and responsibilities, assignments of authority, and then you have the formation of organization chart and manual। All right, तो ये था process। Next हम आते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जब हम किसी चीज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका क्या महत्व होता है या क्या बेनिफिट होता है। पहला क्या होता है, इट फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन। सो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, अ साउंड एंड बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स दैट द एंटरप्राइज वर्किंग इज डन स्मूथली ऑन बोथ मैनेजरियल लेवल एंड ऑपरेशंस लेवल। मतलब आपका मैनेजमेंट भी अच्छा हो रहा है एंड आपका फ्लोर वर्क जो हो रहा है, आपका एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो हो रहा है, ऑपरेशंस हो रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी स्मूथली चलता रहे। दैट इज बीइंग डन बाय अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन। इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ। A proper organization promotes, it helps in the effective use and utilization of its manpower and hence permits organizational elaboration। जितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें आप देखेंगे उतनी अच्छी उसकी ग्रोथ होती है। द ट्रेजेक्टरी ऑफ द ग्राफ गोज अप। वाई? बिकॉज दे आर यूटिलाइजिंग द मैन पावर। जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, जो स्टाफ वहाँ काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज वहाँ काम कर रहे हैं, उनको उनके स्किल्स के हिसाब से यूटिलाइज किया जाता है, ताकि वो लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के साथ साथ अपना पर्सनल ग्रोथ भी वहाँ पे अचीव कर सके। उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाता है, उनको उनको रेगुलरली उनको अपस्किल किया जाता है, ताकि वो और बेहतर तरीके से काम कर सके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का तो फायदा होगा ही होगा, साथ में उनका भी पर्सनल ग्रोथ होता है। इट स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वही है जो अपने लोगों को काम करने की आज़ादी देता है, काम करने के तरीके को डिफाइन करने की, डिसाइड करने की आज़ादी देता है। So a sound organization promotes creativity and independent in the thinking and execution of the work by the people। They would not put them in a box as a robot कि आपको ऐसे ही काम करना है। No, a sound organization like all these MNCs, all the companies like Google हो गया, Microsoft हो गया, HP हो गया, all these, the best part of these organizations are they promote creativity। They would let their people think out of box, execute their work as they want। only the main aim is they should reach the target। जो भी टारगेट रीच करने के लिए जो भी वो तरीका अपना रहे हैं, that they are free to decide। that is the best part of an organization। Next is resource utilization। A sound organization would permit optimum use of the technical and human resources। They would let the resources be utilized in a very good and optimum way। कोई भी आपका मशीनरीज है वो आइडल नहीं पड़ी होंगी, कोई भी लोग हैं वो आइडल नहीं बैठे होंगे। दे वुड नो कि हमें क्या काम करना है, हमें कैसे काम करना है, ताकि हम अपना टारगेट को अचीव कर सके। एंड दे वुड द ऑर्गेनाइजेशन वुड हेल्प इन द ऑप्टिमम, द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ देयर रिसोर्सेज by placing the right resource at the right position by
appointing or delegating right kind of work to the right kind of people. That way they will be able to utilize the resources well. Okay, so अभी हमने क्या पढ़ लिया? We read what is organization, we read what are the important elements और components of an organization. Organization को बनाने में क्या क्या चीज चाहिए होती है. What is the process? जब हम organizing या organization की बात करते हैं तो क्या process follow करते हैं ताकि हम target को decide करने से लेके target को achieve करने तक की journey cover कर सके. And then we have studied about what are the importance, what is the benefit of a sound organization. All right. Now we move to the next topic, which is departmentalization, या जिसको हम departmentation भी कहते हैं. Okay, you might be thinking कि departmentalization क्या हो गया? What is this word? Okay, now when, for example, your teacher has assigned you a presentation. 10 people are working in a group of 10 people. Now you know that on next Monday you have to present a topic in front of your class. Okay, now you, out of those 10, not everybody would be working on making the PPT, right? Somebody would be working on maybe the at the back end, collecting data, doing research. Somebody might be working on collecting images, videos, audio-visual elements for the presentation. Somebody might be doing in the write-up of the presentation. Somebody might be actually making the PPT, and there would be people who are good in communication. They might be presenting the presentation on the final day. So आपने क्या किया? आपने उस particular छोटे से task को, एक presentation को आपने अलग-अलग activities में divide करके उन लोगों को वो responsibility दी जिसमें वो माहिर है. ओके, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक बंदा एक ही, सारे बंदे मिलके एक ही काम नहीं करेंगे. हर एक बंदा अपने स्किल के हिसाब से, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से अपना डिपार्टमेंट को चूज कर सकता है. पीपल हु आर गुड इन फाइनेंस, दे विल नॉट गो एंड टेक अप द मार्केटिंग एक्टिविटी. पीपल गुड इन रिक्रूटिंग एंड टॉकिंग टू पीपल वुड नॉट गो एंड एंड अप सिटिंग इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट. तो मतलब आपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया? अलग अलग एक्टिविटीज के काम के हिसाब से उनको कैटेगराइज कर दिया, उनको सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग कर दिया कि ये हमारा फाइनेंस है, ये हमारा मार्केटिंग है, ये हमारा से एचआर है, या इस बेसिस पे कर दिया कि ये हमारे इंडिया का मार्केट देखेंगे, ये हमारा यूएस का मार्केट देखेंगे, ये हमारा मिडिल ईस्ट का मार्केट देखेंगे, ये एशिया पैसिफिक मार्केट देखेंगे. या ये भी तरीका हो सकता है सेग्रीगेशन का कि ये हमारे रिटेल कस्टमर्स को देखेंगे, ये हमारे होलसेल कस्टमर्स को देखेंगे, ये हमारे पब्लिक सेक्टर कस्टमर्स को देखेंगे. तो आपका सेग्रीगेशन का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट द मोटो इज टू categorize the similar kind of task in a particular category and then dividing the people and work accordingly. Okay, so when we go and read about it, departmentalization, also referred to as departmentation, is the process of grouping teams or activities into departments or functions with specific objectives, goals and outcomes to be achieved. It is a way of dividing an organization into separate parts, each with its functions and responsibilities, but all geared towards achieving the organization's overall goal. So you will have different departments within the organization, but then उन सब का काम होगा उस organization के main goal को achieve करना, main purpose को achieve करना. Everybody working together will be working together in coordination with each other, but then आपका end result, end objective सबका same होगा. All right. ओके, सो क्या पर्पस होता है, क्यों हम डिपार्टमेंट्स में उनको डिवाइड करते हैं, लोगों को या काम को? ताकि आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव हो सके, बेहतर तरीके से अचीव हो सके, इफेक्टिवली अचीव हो सके. लोगों को क्लैरिटी हो कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनको क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है. फाइनेंस विल नो कि उनको क्या काम करना है. दे हैव टू टेक केयर ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ द कंपनी, बजटिंग ऑफ द कंपनी, मनी रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होंगे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा, ना कि आपका एचआर डिपार्टमेंट देखेगा. लोगों को रिक्रूट करना, लोगों को ट्रेनिंग देना, लोगों को अप्रेजल करना उनका, ये सब फाइनेंस नहीं देखेगा, ये आपका एचआर डिपार्टमेंट देखेगा. सो एवरी इफ वी डिवाइड the work properly, we divide the company properly into different departments, so there is better clarity of work.
Of course, that will increase the efficiency of the people, because they would be they would know what kind of work they are supposed to do, and they will have all the technical abilities to perform that work, so unki efficiency of course बढ़ेगी. Then you have accountability. When there is any discrepancy in the money related matter, you will go and approach the finance department, and they would know कि yes, this is my responsibility, I take the accountability, and I will get it clarified or resolved. तो अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा अच्छे से होगी. अगर आप लोग ऐसे काम कर रहे हैं एक हैप्पीजर्ड वे में, एक मेस में, कि उन्हें पता ही नहीं कौन क्या काम कर रहा है, सो विल देयर वुड बी नोबडी टू टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एनीथिंग रॉन्ग हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. बट किसी पर्टिकुलर टास्क में अगर गड़बड़ी होगी, तो आप उस डिपार्टमेंट में जाके उनसे बात करोगे, एंड दे विल be more than happy to resolve that particular discrepancy. They can adapt very easily and respond to the changing in the external or internal environment. अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज में अचानक से कोई बदलाव आ गया, तो आप उस डिपार्टमेंट में जाके बात कर सकते हो कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, जो डिपार्टमेंट इसको टैकल करता हो. अगर आपके लेबर लॉस में कोई चेंजेस हो गए हैं, तो आप डायरेक्टली एचआर में जाके बात कर सकते हो, एंड दे विल हैव द सोल्यूशन टू रिजॉल्व और टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग rules and regulations of the government. So they are more adaptable. When they know what kind of work they are doing, they know how to respond to the changes happening in the environment. And this everything now denotes into a better decision making. You have a better streamlined capabilities of decision making when you have departments in your organization, a clear set of departments, a clear outlined departments, and people knowing what kind of work they have to do because they know which department they belong to. All right. Okay, so now we come to the last leg of this particular video, which talks about the types of departmentalization. किस आधार पे हम उनको कैटेगराइज करें. जैसे हमारे कॉलेज में होता है, हम उनको सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, उनको हम स्ट्रीम्स में, बीएससी अलग, बीबीए अलग, बीकॉम अलग. क्यों? क्योंकि उनने वो चूज किया है, उनका बैकग्राउंड वैसा रहा है. उसी तरीके से हम डिपार्टमेंट्स को अलग करते हैं बेस्ड ऑन द कैटेगरीज ऑफ वर्क, जो फंक्शन वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में. या कई बार हम कस्टमर्स के बेसिस में उनको डिवाइड कर सकते हैं, कई बार उनको टेरिटरी के बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि बेसिकली हमारा काम आसान हो सके. व्हेन वी डिवाइड द होल वर्क इनटू डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट, तो हमारा काम आसान हो जाता है, उसको करने की क्षमता बढ़ जाती है लोगों की. दैट इज कॉल्ड द टाइप्स. ओके, सो हियर वी कैन सी यू हैव द फंक्शनल डिपार्टमेंट. जैसे मैंने बताया, यू हैव डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस लाइक मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी, एचआर, फाइनेंस. ये फंक्शंस है, उसके बेसिस में हम अपने डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं. इफ अ कंपनी is dealing in more than one country, say for example Reliance, such a huge conglomerate, such a huge industry, वो सिर्फ इंडिया में तो एग्जीक्यूट नहीं करते अपना काम, दे वर्क अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स. तो हम मे बी उनके कंपनी में उनको अलग तरीके से कैटेगराइज कर रखा है, डिपेंडिंग ऑन द टेरिटरी इन विच दे आर वर्किंग. मिडिल ईस्ट के लिए अलग डिपार्टमेंट है जो मिडिल ईस्ट के मार्केट्स को देखता है. एपैक के अलग डिपार्टमेंट्स है जो सिर्फ एपैक के मार्केट को केटर करता है. यूरोप का अलग हो सकता है, अमेरिका का अलग हो सकता है. तो हमने उनको ज्योग्राफी में डिवाइड कर दिया. Tata, for example, they deal into many things, a lot of things. Like they are also into food, they are also into retail, they are also into software, they are also into different प्रोडक्ट्स. तो हमने उनको प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर दिया. फॉर एग्जांपल कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, दैट विल केटर टू द प्रोडक्ट्स डीलिंग स्पेसिफाइड फॉर द हेल्थ कैटेगरी. ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए हमने अलग डिपार्टमेंट बना दिया, फूड के लिए अलग बना दिया, मे बी रिटेल के लिए हमने अलग डिपार्टमेंट बना दिया. तो ये हमने प्रोडक्ट के बेसिस पे उनको कैटेगराइज कर दिया. बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ज़्यादातर कस्टमर के बेसिस पे डिवाइड करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन को. बैंक से फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, उनका एक अलग चेंबर होगा, अलग डिपार्टमेंट होगा जो रिटेल कस्टमर्स को डील करती है. एक हो सकता है डिपार्टमेंट जो हाउस होल्ड कस्टमर्स को डील करता हो, एक डिपार्टमेंट होगा जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से डील करता हो. सो दे नो व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर्स दे आर डीलिंग विद, उनका सारी डिटेल्स, उनके सारे नॉलेज, एक्सपर्टीज उनके पास होती है. Okay, now there could be manufacturing companies, big manufacturing companies who have divided the work based on the process.
प्रोसेस क्या होता है, जैसे रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना, कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, जब वो फिनिश्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो उनको पैकेजिंग, लेबलिंग करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना वेयर हाउस से मार्केट तक। तो ये बड़ा खासा प्रोसेस होता है। हमने इसी को डिवाइड कर दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया। एक डिपार्टमेंट होगा जो सिर्फ रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने में ध्यान देगा, एक डिपार्टमेंट होगा जो उसकी प्रोसेसिंग को ध्यान देगा, अलग डिपार्टमेंट होगा जो उसकी पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग, व्हाट काइंड ऑफ व्हाट साइज ऑफ बॉटल शुड बी देयर, व्हाट काइंड ऑफ पैकेजेस, कलर ऑफ द लेबलिंग शुड बी देयर, इस चीज पे ध्यान देगा। there might be a department which will do the marketing and advertisements of their products, and there might be a department which is taking care of the transportation of the finished product to the end users, customers. तो हमने इसको प्रोसेस में डिवाइड कर दिया। सो दीज आर बेसिकली द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कैटेगरीज इन विच डिपार्टमेंटलाइजेशंस आर बीइंग डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बी इट एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मैटर, प्राइवेट, पब्लिक, एमएनसी, लोकल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को, अपने लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करके फिर काम को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करता है। So this was all for this particular video. Any confusion, please let me know in the comment section below. And for the next leg, which is, I think we are just left with one more topic that I will be covering in my next video. And till then, study well and please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.